ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰਤ ਕਿਤਨੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਰਸਤਾ, ਮਾਰਗ। ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਰਸਤਾ, ਮਾਰਗ। ਪੰਥੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਵਾਟ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੁਰਤ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨਾ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮਕਸਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਕਿਉਂ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਪਜੀਵਕਾ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੂੰ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਨੰਗੇਜ ਢਕਣਾ। ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ 40-40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਖੋਗੇ ਬਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
दोहां की जिंदगी च की फर्क है? अगर कोई फर्क है दिखाई दे तो समझ लेना इसकी सुरत चल पई है, इहदा ध्यान गुरु दे मार्ग ते चल पिया। ते जिस वक्त सुरत चलेगी कुछ पलटा आवेगा, तब्दीली आवेगी, लाजमी आवेगी। पर सिर्फ शरीर ही चल के आया है गुरुद्वारे तक, सुरत चली नहीं, ध्यान चलिया ही नहीं, कोई पलटा नहीं आएगा, कतई कोई तब्दीली नहीं आवेगी। और हो सकता है ये पहले नालों ज्यादा कठोर हो जाए, हो सकता है पहले नालों ज्यादा झूठा हो जाए। ये कुछ मैं थोड़े सामने इतिहासक सबूत रखा। सरहंद सूबे की कचहरी विच जिस वक्त बच्चियां नूं ये सजा सुनाई गई गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के लाडलियां नूं कि इन्हां नूं दीवार दे चिण दिओ, कहंदे ने नवाब मलेर कोटला बैठा सी, उन्हें आह दा नारा मारिया, बड़ा दुखी होया, कहन लगा मासूम बच्चियां ते जुल्म है, हालांकि मुसलमान है। और उसकी जिंदगी का मुताला करो, नवाब मलेर कोटला 5 टाइम का नमाजी नहीं सी, तस्बीह नहीं फेरदा सी, रोज नियम के मुताबिक मस्जिद विच जाण वाला वह बंदा नहीं सी, बल्कि किसी हद तक थोड़ी जिहा अयाश तबीयत दा सी। पर जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया भी ये बच्चे दीवार दे चिण दिते जान, इस नवाब ने हौका मारे बई ते जुल्म, बहुत जुल्म, अथाह जुल्म है। पर दीवारां दे च इन्हां नूं चिण दिता जाए, ये फैसला कौन पे देंदे ने? काजी, मौलवी। ਉਹ काजी जिन्हां दे हथ दे च तस्बीह सी, माला सी, जो 5 टाइम बकायदा नमाज पढ़ते सन, जिन्हां नूं सारी कुरान हिफज सी, याद सी, जबानी याद सी, कंठ सी, इस्लाम दी रौ रीति नूं जो चंगे तरीके नाल जानदे सन, ज्ञानी सन, पंडित सन, रोजे भी रखते सन, ज़कात भी देंदे सन, कुरान दे हाफिज भी सन, तस्बीह भी फेरते सन, 5 टाइम नमाज भी पढ़ते सन। हिरदा इतना कठोर कि मासूम बच्चियां नूं दीवार दे चिण देण दी सजा देण लगिया, रंचक मात्र भी हिरदा हिलिया नहीं। पर दूजे पासे नवाब मलेर कोटला ना वो नमाज पढ़दा, ना उहदे हथ विच तस्बीह सी, ना वो 5 टाइम बकायदा मस्जिद दे च जांदा है, लेकिन उसका हिरदा हिल गया बई ये तो जुल्म है, ये तो अथाह जुल्म है। ऐसा क्यों होया? नमाज पढ़दियां पढ़दियां, तस्बीह फेरदियां फेरदियां, रोजा रखदियां, मस्जिद विच आउंदियां आउंदियां कोई मुद्दा नहीं रखिया, कोई मकसद नहीं रखिया, फेरी जा रहे हैं तस्बीह, पढ़ी जा रहे हैं नमाज, रखी जा रहे हैं रोजे, पढ़ी जा रहे हैं कुरान, कोई मकसद सामने रखिया नहीं, हिरदा कठोर हो गया। तो गुस्ताखी माफ। मैं सिख जगत विच भी कई ऐसे मनुख देखे ने, रोज दे नितनेमी भी ने, लोग उन्होंने प्रेमी भी कहते हैं, पर कभी हिरदा खोल के देखना पत्थर, बिल्कुल पत्थर। अनक जतन करे आत्म नहीं दरवे, हर दरगे को कैसे गवे। ऐसा क्यों हो गया? सुरत रुक गई है, ध्यान रुक गया, फायदे की थां ते उल्टा नुकसान हो गया। और बाबे फरीद का ऐसे पुरुषों के संबंध विच फैसला है, बड़ा सुंदर श्लोक है बाबे फरीद का, तत्ती तोए न पलवे जे जल टुब्बी दे, फरीदा जोडो हागण रब दी झूरे दी झूरे। बाबा फरीद कहते हैं जेड़ी जमीन पानी तो बिना सुक गई है, वक्त सिर पानी नहीं मिले, जे उन्हों पानी दे दईए तो मुड़ के फिर भी हरा भरा कर सकते हैं, उसको फिर कुछ बीजिया जा सकता है, पानी दे के उसनों हरा भरा किया जा सकता है। पर जेड़ी धरती पानी दी मारी हुई है, जिस धरती नूं पानी नहीं मार छड़िया, झगड़े ने, लड़े ने, और उन्हां दी लड़ाई झगड़े, उन्हां दी मानसिक अवस्था, उन्हां दे कलेश नूं वेख के कहना पैंदा है कि पानी दी मरी हुई खेती, कुछ नहीं पैदा हो।
इत्थे कुछ नहीं जमना, कथा कीर्तन नाल कुछ नहीं होगा, इत्थे दान पुण्य नाल कुछ नहीं होगा। तो पानी की मरी हुई खेती, और पानी की मरी हुई खेती गुस्ताखी माफ बहुत ज्यादा दिखाई देती है। जमीन ऐसी जिसनों पानी मार गया हो बहुत घट है, बहुत थोड़ी है। हाँ, जिथे पानी नहीं पिया ऐसी जमीन उजड़िया हुई जरूर ने। अरब के रेगिस्तान ने, मरूथल ने, राजस्थान का मरूथल है, हिंदुस्तान के कई इलाके ने पानी न मिलने करके उजड़े जरूर ने। ऐसिया जमीन घट ने जो पानी की मारी हुई, जिन्होंने पानी ने बर्बाद कर दिता हो। पर मनुखी जिंदगी की जिहड़ी खेती है, क्षमा करनी, ऐसी उजड़ी हुई तो बहुत घट है जिथे पानी ना वरसिया हो। लेकिन ऐसे उजड़े बहुत ने जिन्होंने पानी मार गया। पानी की मरी हुई खेती, तत्ती तोए ना पलरे जे जल टुटी दे, फरीदा जो दो आगन रब दी, झूरे दी झूरे। पखंड नूं दूर करने वास्ते धर्म का आसरा लेना पैंदा। बई धर्म के आसरे ते पखंड ते झूठ नूं दूर करिए, पर धर्म के आसरे ते कोई पखंड खड़ा कर छे, धर्म के आसरे ते कोई झूठ खड़ा कर छे, धर्म के आसरे ते कोई गुनाह करे तो पानी की मरी हुई खेती होगी। इसका की इलाज है? कोई इलाज नहीं, ला इलाज। जो पानी की मरी हुई खेती है उसका की इलाज है? तो मैं अर्ज कर रहा सी, जमीन के उत्ते ज्यों चली है, बैठे हुई है अपनी गड्डी विच, मीटर दस देंगे कितनी दूरी ते आ गए, कितने मील मुसाफरे तय हो गई है, मील पत्थर दस देंगे ने। पुरखा रोज तो गुरुद्वारे आउंदा पे काफी मुद्दत तो, जरा अज वेख किथे पहुंचे। क्योंकि गुरु नानक ने थोड़ी सुरत नूं पहुंचाना है सचखंड तक। सच तक पहुंचना साडी मंजिल है, सच तक पहुंचना साडी जिंदगी का मनोरथ है, सच तक अपना जिंदगी का मुद्दा है, मकसद है। पर रस्ते च कुछ मार्ग ने, पड़ाव ने। उन्हां पड़ावां दा गुरु नानक देव जी महाराज ने जिक्र किया है। 4 पड़ाव ने, 5वीं मंजिल है। ते कल मैं ये भी अर्ज की सी, मुहम्मद साहब कहते ने 3 पड़ाव ने, 4थी मंजिल। भारत के उपनिषदां दे ऋषि ब्रह्मे दे समेत व्यास ने, पतंजलि ने, जैमिनी ने, गौतम ने, गौतम 2 होए ने, गौतम ऋषि होया, एक महात्मा गौतम बुद्ध होया। गौतम ऋषि का शास्त्र है बकायदा, जिन्हों न्याय कहते हैं। न्याय शास्त्र का करता गौतम है, ते धम्मपद जिहड़ा ग्रंथ है ओदा करता है महात्मा गौतम बुद्ध, बोधियां नूं जन्म देने वाला। ये 2 ऋषि हिंदुस्तान दे होए। तो गौतम ऋषि है, जैमिनी है, व्यास है, पतंजलि है, गोरख है या मच्छंद्रनाथ है। इन्हां सारियां ने इस गल नूं मन्निया, प्रथम कर्म कांड, फिर उपासना कांड, ते फिर ज्ञान कांड। 2 पड़ाव ने, तीसरी मंजिल है। ज्ञान तक पहुंचना है, प्रकाश तक पहुंचना है। किवें पहुंचीए? पहले कर्म कांड, ते कर्म तो बाद फिर उपासना कांड। उन्होंने वंड इंज की है कि बंदा कुछ शरीर है, बंदा कुछ मन है, बंदा कुछ आत्मा है। शरीर के तल दे ते कर्म करे, मन के तल दे ते उपासना करे, ते आत्मा के तल दे ते भक्ति करे। आत्म प्रकाश, उन्होंने ज्ञान कांड कह दिता है। तो शरीर नाल कुछ कर्म करे, और इसी तरीके दे नाल मुहम्मद साहब ने साफ कह दिता, पहले शरा, फिर तरीकत, फिर मार्फत, फिर हकीकत। पहुंचना ते हकीकत तो है, पर शरा तो गल शुरू करनी है, शरीयत तो गल शुरू करनी है। फिर होर मैं अर्ज कर देना, शरा दे, धर्म दे, इबादत दे, धर्म मंदिरां दी लोड़ क्यों है? जगत के सारे रहबरी पुरुष कहने मनुख दुखी है, मनुख दुख दे। कभी बगौर मुताला करोगे ना, छोटा दुखी है, वड्डा दुखी है, निर्धन दुखी है, धनवान दुखी है,
कमजोर दुखी है, बलवान दुखी है, बीमार का दुखी होना कुदरती गल है, तंदुरुस्त भी दुखी है। दुख व्यापक है, दुख व्यापक रूप से छाया है। जमीन के उत्ते ऐसा कोई मुल्क नहीं, ऐसा कोई कस्बा नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जिथे दुख ना होवे। गुरु नानक का फैसला बाली रोग है, ना है हतार, नानक दुखिया सब संसार। मनुख की जिहड़ी मूल समस्या है वह दुख है। तो दुख की निवृत्ति किस तरह होवे, दुख तो बचिया किस तरह जावे। ईसाईयत, इस्लाम ते यहूदी ऐसा कहते हैं कि दुखों का जन्म होंदा है पाप तो, ते पाप नूं मिटाण वास्ते चाहिए ने पुण्य। हदीसां इस्लाम दियां पढ़ीए, कुछ नियमावली ईसाई जगत की पढ़ीए तो कहने कुछ पुण्य करो ते पाप मिट जाएंगे, ते जो पाप मिटणगे दुख मिट जाएंगे। पर सवाल है पाप कितने ने? जे एक एक पुण्य नाल एक एक पाप मिटेगा तो पाप के बेशुमार ने, मनुख के पाप गिने ही नहीं जा सकते। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फैसला है कि जिवें समुद्र का पानी नहीं नापिया जा सकता, मनुख के अवगुण नहीं नापे जा सकते। जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। गलत रोज वेख लेंदे हां, गलत रोज बोल लेंदे हां, गलत सोच लेंदे हां, गलत सुन लेंदे हां ते अवगुण रोज होंदे ने, पाप ते रोज इकट्ठे होंदे। भाई पुण्य करो ते पुण्य नाल पाप धुलणगे। ते हुण जितने पाप ने उतने पुण्य करिए ते कई जीवन चाहिए ने, एक जिंदगी ते गल बनदी नहीं। फिर ते पुण्य करदियां करदियां भी कई पाप हो जाणगे, फिर ये निबेड़ा ते हुंदा नहीं, ये गल ते बनदी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने एक होर सवाल खड़ा किया है, जे दुख पैदा होंदे ने पाप तो फिर बंदा पाप करता ही क्यों? की लोड़ पै गई है पाप करने की? क्योंकि पाप तो दुख पैदा होंदे ने, ते दुख बंदे की मंग नहीं है, दुख बंदे की चाहत नहीं है, दुख बंदे की लोड़ नहीं है। ते दुख पैदा होंदे ने पाप तो फिर मनुख नूं नहीं करने चाहिए पाप, क्यों करता है बंदा पाप? इस्लाम ते ईसाईयत को इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। हिंदुस्तान के ऋषि मुनि ते गुरु नानक देव जी महाराज का यह फैसला है कि मनुख पाप करता है अज्ञान वश होके, ना समझी वश, पता ही नहीं। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले। मासूम बच्चा है, अग नूं हथ पांदा है, सप नूं हथ पांदा है, पता ही नहीं, उन्होंने बोध नहीं है। जिस दिन समझ हो जाती है फिर अग दे हथ नहीं पांदा, फिर सप दे मूंह दे उंगल नहीं देता, उन्होंने पता चल जाता है जहरीला नाग है, दस लवेगा मैनू। तो साहिबान का फैसला कि पाप का जन्म अज्ञान तो है, अज्ञान तो पाप पैदा होता है, पाप तो दुख पैदा होंदे ने। पाप दुखां का मूल नहीं है, दुखां की शाख। पाप की शाख नूं दुख के फल लगते हैं, लेकिन जड़ जिहड़ी है वो अज्ञान है। इस वास्ते समूह भारती ऋषि मुनिया ने कह दिता, ज्ञान तक पहुंचना सुख तक पहुंचना है, ज्ञान तक पहुंचना परमात्मा तक पहुंचना है। ज्ञान की सूझ समझ आउंदे ही मनुख गुनाहां तो बच जाता है, पाप तो बच जाता है। उंज पुण्य दे नाल पाप नहीं कटणगे, ज्ञान दे नाल कटणगे, पुण्य नाल नहीं कटते। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की एक बड़ी कीमती पंक्ति मैं थोड़े सामने रखा, पाप पुण्य दोए एक समान। पाप ते पाप है ही ना, पुण्य भी पाप है। तुसी औखे जरूर होवोगे कि भाई किस तरह दी पुठियां सीधियां गल्लां करन लग पिया, पर मैं इतनी अर्ज कर दिया, हंकार वश होके नहीं, जो कुछ कहांगा गुरबाणी की पंक्ति तस्दीक कर देगी। कि जब पंक्ति तस्दीक कर दे तो फिर सिख का यह फर्ज बन जाता है किंतु नहीं करना, शक नहीं करना, शक वास्ते कोई गुंजाइश नहीं। पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है, ते पाप ते पुण्य च कोई फर्क नहीं है। पाप नाल हिरदा दुखी होंदा है, दुख पैदा होंदे ने, पुण्य तो भी कोई सुख नहीं पैदा होता। पाप पुण्य दो एक समान, निज गुण पारस तजो गुण आन। पुण्य नाल कोई हिरदा पवित्र नहीं होता, निर्मल नहीं होता, कोई गल नहीं बनती। आखिर हर मनुख ने जिंदगी कोई ना कोई पुण्य ते कीते, कोई गल बनी है,
बंदा गुरुद्वारे भी आया है, दान भी दिता है, सेवा भी की है, और भी बथेरे पुण्य कीते ने, क्या हृदय पवित्र हो गया? क्या हृदय शुद्ध हो गया? पाप पुण्य दो एक समान, पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है, कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं। जे वाकई कोई फर्क नहीं थे, इसका मतलब है पुण्य ना करिए, बिल्कुल ना करिए। तो इसका थोड़ा जिहा निर्णय मैं थोड़े सामने रखा। पाप बंदा क्यों करता है? अज्ञान वश होके बंदा पाप करता है, लोभ वश होके बंदा पाप करता है, आशा तृष्णा वश होके बंदा पाप करता है, हंकार वश होके बंदा पाप करता है। मूल जिहड़ी गल है अज्ञान। ते अज्ञान वश होके बंदा पुण्य करे, लोभ वश होके बंदा पुण्य करे, तृष्णा वश होके बंदा पुण्य करे, हंकार वश होके बंदा पुण्य करे, ते पाप पुण्य च की फर्क होया? कुछ नहीं। दोहां दा थल्ले बुनियाद ते इको ही है। हंकार वश होके पाप कर छड़िया ते हंकार वश होके दान कर छड़िया। लोभ वश होके कोई पाप कर छड़िया ते लोभ वश होके पुण्य कर छड़िया। लोभ वश होके अखंड पाठ रखाया है, बाबा तू बरकतां पाई, ऐ करी ओ करी, ओ लंबी चौड़ी लिस्ट बाबे दे अगे रखी। अज्ञान वश होके बंदे ने पाप कीता ते अज्ञान वश होके पुण्य कीता। तो फिर पाप ते पुण्य विच फर्क की है? गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का कहना है कि जिहड़े पुण्य हंकार वश होके कीते जांदे सारे ही व्यर्थ ने। तीरथ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान, नानक ने फल जात ते जिम कुंचर स्नान। हाथी स्नान करता ऊपर मिट्टी पा लेंदा, नाता धोता बराबर हो गया, पुण्य कीते बराबर हो गया। कि थल्ले जिहड़ा मूल है ना, पुण्य दे थल्ले जिहड़ी चाहत है वो ठीक नहीं। सतगुर निरे कर्मां नूं नहीं देखदा भी असीं कर्म की पे करते हैं, सतगुर नीयत नूं वेखदा है। शुभ कर्म, चंगा कर्म, ये पुण्य कर्म इहनूं मनदे ने। जिहड़ा चंगा कर्म उहनूं पुण्य कर्म मनदे। पर चंगा कर्म एक बीज है, ते जितने चिर तक चंगे बीज नूं चंगी जमीन ना मिले, बीज प्रफुल्लित नहीं होता, बीज पनपदा ही नहीं, वो फुल फल तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि चंगे बीज नूं चंगी जमीन का मिलना बड़ा लाजमी है। कई बंदे चंगे कर्म करते हैं, दुखी होंगे, बेचैन होंगे। उन्होंने मेरे से थां थां ते सवाल किया, इन्ने असी शुभ कर्म करते हैं, इन्ने बेचैन हाँ, इन्ने परेशान, इतने साडे कोल दुख ने। तो उन्होंने मैं कहना हुंदा, बीज ते तुहाडे कोल बहुत वधिया है, धरती है ही कोई नहीं, जमीन है ही कोई नहीं। वरना हो ही नहीं सकता कि जिस चंगे बीज नूं चंगी जमीन मिल जाए प्रफुल्लित होंदा, वो वधदा है ते फुलदा है। शुभ कर्म चो निकलने सन सुख, नहीं निकले रे सुख। क्यों? कि चंगे कर्म नूं चंगी जमीन नहीं मिली। शुभ कर्म एक चंगा बीज है, पर चंगी नीयत एक चंगी जमीन है। बंदा कर्म ते शुभ करे ते नीयत ठीक ना होवे, कर्मां नूं कोई भाग नहीं लगता। इतनी मैं अर्ज करदा। इहदे ते कुछ उदाहरण मैं गुरु ग्रंथ साहब के थोड़े सामने रखा। जैसे मत्था टेकना शुभ कर्म है, बड़ा शुभ कर्म है, पर अंदर नीयत ठीक नहीं, तो गुरु नानक देव जी कहते ने मत्था टेकना किसी काम का भी नहीं। शीश निवाइए क्या थिए जां हृदय कुसुदे जाए। ते मत्था टेकना की मैंने रखता, अंदरों ते तू झुकया ही नहीं। ते जिहड़ा अंदरों झुक गया उसकी की पहचान है? उन्हें गुरु की हर गल मन लैनी है, हर गल भी ठीक है, गुरु तू जो के है कबूल परवान। ते उंज मत्था टेकदा पे ते गल एक भी मनण नूं राजी नहीं, ते पखंड है। बीज ते चंगा है, मत्था टेक है, कर्म ते चंगा है, पर नीयत चंगी है, भाग नहीं लगेगा। शीश निवाइए क्या थिए जां हृदय को सदे जाए। बड़ी दुनिया मत्थे पे टेकदी, कोई गल बने? गल उन्हां दी बनदी है जो अंदरों झुक जांदा, ते अंदरों झुके दी पहचान है, गुरु मैं तेरी हर गल मनदा, कबूल परवान। लफ्ज मैं फिर दोहरा देना, मत्था टेक लेना है कि गुरु ग्रंथ साहब का पूरा सत्कार नहीं है, सत्कार का एक निक्का जिहा हिस्सा है, जिवें ये मेरी उंगल शरीर का एक हिस्सा है, एवं मत्था टेकना बस सत्कार का एक माड़ा जिहा हिस्सा। चौर कर लेनी, कीमती रुमाले सतगुरु नूं भेंट कर देने, अगों धन रख देना, माया रख देनी, ये सत्कार का एक निक्का जिहा हिस्सा, बहुत निक्का जिहा, पूर्ण सत्कार नहीं है। पूर्ण सत्कार यही है कि गुरु का हर वचन खिड़े मत्थे कबूल कर लेना, प्रवान कर लेना। ते कौन प्रवान करेगा? जिहड़ा ये कबूल करेगा, ऐ गुरु मेरे नालों
धर्म के संबंध दे तू ज्यादा जानना है, तेनू ज्यादा पता, मैनू नहीं पता। मेरे नालों परमात्मा के संबंध दे तू ज्यादा जानना है। इस वास्ते तेरी हर गल मैं कबूलन में तैयार, प्रवान करने में तैयार। मत्था टेक लिया, गल मनदा ही नहीं। मत्था टेक लिया, बचन मनदा ही नहीं। मत्था टेकिया, अंदरों झुकिया ही नहीं, अंदरों ते आकड़िया होया, पूरा पूरा आकड़िया है। तो साहब कहते इहो जिहियां दे बंदियां दा मत्था टेकना कौड़ियां भी खोटा, कोई मतलब ही नहीं रखना। बल्कि साहिबा ने एक होर इल्जाम ला दिता है, अपराधी दूणा ने वे जो हम ता मेरे गाय, शीस निवाइए क्या थिए जा हृदय को सोते जाए। शिकारी जद शिकार खेडते ने हिरन दा, शेर दा, चीते दा, तो जमीन के उत्ते लेट जाते हैं, झुकते हैं। तो हुण साहिब कहते हैं झुकना कोई उन्होंने मत्था टेकना है। अंदर नीयत की है, कोई हिरन में मत्था पै टेकते हैं, चीते नूं मत्था पै टेकते हैं, वो किसी जानवर में मत्था पै टेकते हैं। नहीं, अंदरों कोई नहीं झुके, उंज शरीर करके झुके ने। अपराधे दूणा ने जो हम ता मेरे गाए, शीस निवाइए क्या थिए जा हृदय को सोते जा। मैं थोड़े सामने गुरमत दीयां विचारां रख रहा, एक कथा है ते कर्म ते शुभ है, शुभ कर्म है। और इस गल का मैनू माण भी बड़ा रहा है कि पातशाह सवेरे शाम तेरी संगतां दे दर्शन करते हैं, तेरी गल सुनाते हैं, ते हुण तू सानू नहीं बख्शेगा ते होर किसे नूं बख्शेगा। इस तरह का माण 2-4 साल मेरे दिल दिमाग विच रहा है। और मैं इस गल नाल अपने दिल नूं तसल्ली दे दी सी भी सवेरे संगतां दे दर्शन, शामी संगतां दे दर्शन, गुरु की गल सुनांदे, गुरबाणी सुनांदे, बाबा हुण सानू नहीं बख्शेगा और किस नूं बख्शेगा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पाठ करदियां करदियां कुछ पंक्तियां सामने आईयां, उन्होंने मेरे बड़े हुए मान नूं चिकना चूर कर दिता। वो पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखा। कबीर आवरण को उपदेश है, मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया घर का खेत। भी दूजे नूं उपदेश देण वाले जे ये गल तेनों खुद नहीं जची, तेरा हिरदा कबूलदा नहीं, ये उपदेश नहीं है, ते रेत है, मिट्टी है। जिहड़ी गल तेरे मुंहों निकली ते तेनों ही नहीं स्वाद आया, ते इहदा मतलब मैं मिट्टी है। ते दूजियां दे मुंह च मिट्टी पिया पाना, कोई पुण्य ते नहीं, ये कोई पुण्य नहीं, ये ते मिट्टी है, ये ते रेत है। जिहड़ी गल आखदियां तेनों स्वाद नहीं, वो गल सुनदियां भी किसी नूं स्वाद नहीं, वो ते रेत है, वो ते मिट्टी है। फिर इत्थे तक गल नहीं मुकाई। जे जाने हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकर तिल नहीं माने, जे जाने हो कथनी करता, व्यापारी बसदा ज्यों फिरता। बड़ी जबरदस्त चोट कर दी है गुरु ग्रंथ साहब ने, बहुत जबरदस्त। उस दिन तो बाद मैनू अपने इरादे ते अपनियां भावनावां बदलनियां पईयां भी नहीं। कर्म ते चंगा जरूर है, पर जे नीयत चंगी ना हो तो गल नहीं बनती। करते रहिए सारी जिंदगी कथा, कुछ भी नहीं बनता, कख नहीं बनता। जिवें आम लोगों के हिरदे मैले होंदे ने, इस तरह कथा करदे होया भी मंदे दा मन मैला, नीयत ठीक नहीं, ते नीयत ठीक नहीं तो कथा किसी काम की नहीं। यह कीर्तन करना बड़ा शुभ कर्म है, गुरु घर दे सिरमौर काम है, बड़ा उत्तम कर्म है, पुनीत कर्म है, सब तो ज्यादा पुनीत कर्म है। पर जे नीयत चंगी ना होवे ते पता इस कीर्तन बारे सतगुरु का की फैसला है, कोई गावे रागी नाती बेती बहुभांत कर, नहीं हर हर बीजे राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। इस रोण नाल की होना है, कुछ भी नहीं, ये तो निरा रोना। कई रोंदे ही पैने, कीर्तन नहीं है, रोना। इस रोने नाल की होना है, कुछ भी नहीं। कि मैं कीर्तन जानदा, मैं कीर्तन जानदा, कीर्तन छोटे छोटे बच्चे करन लग पे, बड़ी दुनिया करन लग पई। लोगों ने इसे बंदगी समझ लिया, बहुत सारी दुनिया। और बहुत सारे ऐसे कहना ठीक है असी तो कीर्तन कर लेंगे, 4 शब्द पढ़ लेंगे, ठीक है पढ़ लेना होता। कोई गावे रागी नाती बेती बहु भांत कर, नहीं हर हर बीजे राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। अंदर कपट है, अंदर विकार है, कीर्तन करी जा रहे हैं, साहब कहना तू रोंदा पिया काहदा कीर्तन है, इहदे नाल की होना, कुछ भी नहीं, इहदे नाल कोई गल नहीं बननी। और इस संबंध में बहुत सारे शब्द ने, बहुत सारे शब्द ने। दान देना सिख जगत विच और बल्कि समुची धार्मिक जगत विच एक बड़ा वड्डा पुण्य है,
बहुत उत्तम कर्म है। पर जे नीयत चंगी नहीं तो दान भी किसे लेखे नहीं। गुरु ग्रंथ साहब का फैसला। पंक्तियां बहुत ने, मैं एक एक सरवण थानू करा रही हूं ताकि इतना पता चल जाए निरी पुण्य नाल गल नहीं बनती, निरे पुण्य नाल पाप नहीं करते। सारा जगत पुण्य करता पिया है, पाप भी नाले ही करी जाता है, पुण्य नाल कोई पाप नहीं। कीर्तन करी जाते हैं पाप हो ही जाता है, कथा करी जाते हैं पाप भी करी जाता है, कीर्तन सुनी जाते हैं तां भी पाप करी जाते हैं, दान दे जाते हैं तां भी पापी ने, पाठ करी जाते हैं मत्था टेकी जाते हैं तां भी लड़ी जाते हैं, तां भी दुनिया भर का अनर्थ करी जाते। मेरे पुण्य नाल गल नहीं बनी। तो मैं इस तरह की तिफल तसल्ली थानू नहीं देन लगा कि एक दफा वाहिगुरू आखो ते जन्मां जन्मांतरां दे पाप कटे जांदे। अज ते कटे नहीं गए, जन्मां जन्मांतरां दे कित्थों कटे जाणगे? अज दे ते कटे नहीं गए। अज दी समस्या ते त्यों दी त्यों बनी पई है, जन्मां जन्मांतरां दे कित्थों कटे जाणगे? हाँ, जिहदी नीयत शुद्ध है, अगर उसने एक दफा भी कह दिता तो गल बन जाएगी। कबीर सो मुख धन है, जय मुख निकसे राम, देही किसकी बापरी, पवित्र होए वो ग्राम। गल बन जाएगी। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते दान देना बड़ा शुभ कर्म है, पर जे नीयत कर्म चंगी नहीं तो इस कर्म नूं भी कोई भाग नहीं लगता। इत्थे भी गल नहीं बनती। सतियां मन संतोख उपजे, देने के विचार। सतियां का मतलब है दानी। दान देने का ख्याल आया, चलो परोपकार करिए, पुण्य खटिए, दान करिए। पर दे दे मंगे, साहब दे दे के फिर मंगना, अंदरों कोई इच्छा। जिस देने नाल मंगना उन्होंने व्यापार कहते हैं। जिथे देना है लेना नहीं उन्होंने दान कहते हैं। जिथे सिर्फ लेना है देना नहीं उन्होंने शूमपना कहते हैं। वो शूमपना है। जिथे देना है नाल लेना भी है, व्यापार। कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। सेवक नहीं तो व्यापार है। कुछ दिता है, कुछ मंगे है, देन लैन के उत्ते खड़ा है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल उर्दू के एक बड़े प्रसिद्ध शायर हुए हैं। तो कहता है, इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं ये एक तरह की तिजारत है। भाई तो व्यापार है। भाई इबादत इस वास्ते करनी है, नमाज इस वास्ते पढ़नी है जन्नत मिले, तो व्यापार हो गया। ये तिजारत है। कुछ करना, कुछ मंगना, कुछ देना, कुछ लेना। व्यापार खड़ा है लैन देन दे उत्ते। कभी बगौर मुताला कर लेना, लेना है देना नहीं, व्यापार टूट जाएगा। देना है लेना नहीं, व्यापार टूट जाएगा। लेन देन उत्ते व्यापार खड़ा है। जिथे देना है लैन की कोई भावना नहीं उन्होंने दान कहते हैं। जिथे लेना है देन की कोई भावना नहीं उन्होंने शोमपना कहते हैं। जिथे देना भी है जिथे लेना भी उन्होंने व्यापार कहते हैं। व्यापार है। कोट मदे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। तो इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं ये एक तरह की तिजारत है। जो डर कर नारे दोज़ख से खुदा का नाम लेते हैं, ये सच्ची बंदगी नहीं, बुज़दिलाना एक इताअत है। डर के किधरे नरकां च ना पै जाइए, किधरे मर ना जाइए, इस तरह डरे डरे नमाज पढ़नी, डरे डरे बंदगी करनी। इकबाल कहता नहीं ये भी कोई गल, इत्थे भी गल नहीं बनी। तो इबादत किस पे खड़ी है? वो कहता है मगर जब शुक्र नेमत से जुबी झुकती है बंदा की, ये सच्ची बंदगी है, शरीफाना एक इतायत है। बंदगी उथों शुरू होती है जिथे बंदा शुकराने विच आके मस्तक परमात्मा दे अगों रख देंदा है, अकाल पुरख दे अगों। बई शुकराना है तेरा, झोली मेरी बहुत छोटी सी, तुम बहुत कुछ दे दिता, बहुत कुछ दे दिता, मैं की मंगा। रख देता है, सजदा कर देता है, मत्था टेक देता है, शुकराने च आ गया। मैं शिराज के प्रसिद्ध सन शेख सादी भी एक दिन जीवन कथा पढ़ रहा से। इन्हें जिंदगी का एक खास हिस्सा बगदाद दीनी तालीम हासिल करने दे ला दिता। दोपहर के वक्त नमाज पढ़न जा रहा सी मस्जिद ते बचपन दे विच ही इसके मां बाप मर गए सन। यतीमी विच ये बेचारा पलिया, पुराना जमाना।
तो पैरों में जुत्ती नहीं सी ते अरब दी तपदी हुई जमीन अग दी तरह जमीन तप चल रहा सी। कहंदा खुदा तू किसे नू कुछ दिता किसे नू कुछ दिता ते मैं ते अज तक तैथों कुछ मंगया नहीं, तू बख्शिश कर एक जुत्ती किधरों लभा दे। मेरे पैर जल रहे छाले पै जाते, नमाज मैं जरूर पढ़नी है, मस्जिद तक मैं जरूर पहुंचना है, पर मेरे पैर जल रहे हैं। कहते इस तरह की दुआ करदा करदा जो मस्जिद दीयां सीढ़ियां दे कोल पहुंचे है कि की देंदा देखदा है सीढ़ियां दे उपर एक ऐसा बंदा चढ़न की कोशिश कर रहा सी जिहदियां दोवें लत्तां ही नहीं सन। हाथ जुड़ गए उसते शेख सादी दे। कहंदा खुदा मैं जुत्ती नहीं मंगदा, तू मेरियां लत्तां ही सलामत रहन दे। मैं ये वेख्या कि तू मैनू जुत्ती नहीं दे दिती, पर मैं ये क्यों नहीं वेख्या कि तू कईयां नू लत्तां भी नहीं दित्तियां। शुकराने च आ गया, लख लख शुक्र करन लगा। ए खुदा तेरा लख लख शुक्र है, तू पैर ते दिते ने मैनू चलने वास्ते। मगर जब शुक्र नेमत से जो भी झुकती है बंदा की, ये सच्ची बंदगी है, शरीफाना एक इताअत है। तो मैं अर्ज करा जिस देण दे नाल लेना है, जिस लेने नाल देना है, ओनू वपार कहते हैं। तो साहब कहते ने गुरु नानक देव जी महाराज का फैसला सतियां मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे। दे के मंगदा सहसा गुणा हजारां गुणा वध मंगदा। हुण देखो 10% ब्याज हो सकता है, चलो 20% सही, चलो 50% सही, चलो 100% सही ब्याज, पर दे के हजारां गुणा वध मंगदा। दे दे मंगे सहसा गुणा हजारां गुणा वध मंगदा है। शोभ करे संसार, फिर निरा मंगदा ही नहीं, जगत शोभा भी करे कि मैदानी संसार शोभा भी करे, शोभ करे संसार। सतगुरु की ये पंक्ति ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਮੂਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ। ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਟੋਲੇ ਪਿਆ ਲੱਭੇ ਪਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਤੇ ਜਾਵੇ कि मैं सोचा भी बार बार ध्यान जाता पे, चलो पूछ लीए दे कोलों की लभदा पे। मैं सुभावक पूछ लिया, मैं कि बाबा की गुआच गया, काफी देर दे लभदे पे हो। आखन लगा ज्ञानी सिंह जी पिछले साल मैं 1100 दमड़े दे गया सी ते मैनेजर साहब ने कहा सी ना लिखांगे तेरा, तो मैं लभदा पिया किथे मेरा ना लिखिया। मैं कि इस दर दे उत्ते आके लोकी गुरु दा नां लभदे ने, इस दर ते आके लोकी अकाल पुरख दा नां लभदे ने, ते इस दर ते आके तू अपना नां लभदा पे। ते जे तू इत्थे भी अपना नां लभना है तां हुण दस गुरु दा नां कित्थे लभेगा, अकाल पुरख दा नां कित्थे लभेगा। लोकी गुरुद्वारियां च भी अपना नाम लभदे ने, ते जिहड़े गुरुद्वारियां च अपना नाम लभदे ने उन्हां दे पुन्न नूं की खाक भाग लगने ने, कख भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कई अपना ही नाम लभदे ने। गुरु दा नां होवे भावें ना होवे, मेरा नां जरूर होना चाहिए। गुरु की गल होवे भावें ना होवे, मेरी गल जरूर होनी चाहिए। दे दे मंगे सहसा गुणा शोभ करे संसार। जितने इतिहासक स्थान ने, या मैं हिंदुओं के भी बड़े बड़े मंदिर देखे ने, संगे मरमर ते चिट्टा लाण के, पर काले नाम लिख लिख के काला कर छड्डणगे। ते कई दफा ख्याल आंदा भाई हे गुरदेव, जिन्हां बंदियां ने तेरे मंदिर का चिट्टा फर्श चिट्टा नहीं रहन दिता, उन्हां बंदियां ने अपना हिरदा किथे चिट्टा रहन दिता। ओ होमे दी कालक अंदर छा गई। दे दे मंगे सहसा गुणा शोभ करे संसार। दे के मंगदे ने, हजारां गुणा वध मंगदे ने, फिर जगत शोभा भी करे। साहब कहंदे ने इह कोई दान नहीं, इहदे नाल ते कुछ नहीं गल बननी। तो इस तरह का जगत पुण्य कर रहा है कि जब कुछ पता नहीं चलता, कुछ मिलता नहीं, फिर नास्तिक कहने कोई गल नहीं बनी। इतना दान दिता है कख नहीं बनया, इन्ने पाठ किए ने कख नहीं बनया, इन्ना कीर्तन किया कोई गल नहीं बनी, इन्नियां विचारां कीतियां ने, कथा कीतियां ने, सुनिया ने, कोई गल नहीं बनी। दरअसल शुभ कर्म है, पर शुभ कर्म नूं जितने चिर तक शुभ जमीन नहीं मिलती, चंगी धरती नहीं मिलती, इस चंगे बीज ने पनपना नहीं। मैं दो श्लोक गुरु ग्रंथ साहब के थोड़े सामने रखा।
एक बाबे फरीद का है, एक गुरु अमरदास जी का, और दोवें इकट्ठे ने। बाबा फरीद कहते ने पाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पहरेओ, जेही वेसी सौ मिले से ही वेश करेओ। ऐ खुदा तू किस वेश विच मैनू मिलेगा? मैं तन दे रेशमी कपड़े फाड़ देना, नहीं पहनता। मैं कंबली पहन लेना, जिसनों सूफ कहते ने। सूफी फकीर एक सूफी पहनते ने। सूफ का मतलब है उन, उन दी कंबली, जिथों इन्हां दा नाम सूफी पै गया। अरबी विच उन नूं सूफ कहते हैं। ते गर्मियां अरब दियां बहुत महान गर्मी है, लू चलती है, बड़ी तपश। ते तपश दे विच भी उन दी कंबली पहन के रखनी और 12 महीने पहन के रखनी। और उन्होंने देशों के जिथे 12 महीने तपती हुई गर्मी है, ये उन्होंने एक साधना का ढंग से सूफ की कंबली पहननी, इन्हों का नाम पै गया सूफी। तो बाबा फरीद कहते ने पार पटोला धज करी कंबलड़ी पहरेओ, जेही वेसी सौ मिले से ही वेश करेओ। ऐ खुदा मैं रेशमी कपड़े फाड़ देना, सुट देना, उनकी कंबली बना के पहन लेना। तू दस ते सही किहड़े वेश विच मिलेगा? तेनू टोलदियां मैं थक गया, तेनू लभदियां मैं थक गया। दरअसल बाबा फरीद अपनी बैरागमयी अवस्था खुदा दे अगों रख रहे हैं। पर इस सलोक तो किधरे भुलेखा ना पै जाए कि रब वाकई किसी भेख दे मिलता है, किसी खास तरह के कपड़ियां तो मिलता है। तो इस गल नूं फिर अगां चल के खोल दिता है गुरु अमरदास जी महाराज ने। अगों है महला तीजा, फरीदा काहे पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरेओ, नानक घर ही बैठिया सौ मिले जे नीयत रास करे। की लोड़ है रेशमी कपड़े फाड़न दी? की लोड़ है उन दी कंबली पहनण दी? नीयत ठीक करिए तो खुदा घर दे च मिल जाता। नानक घर ही बैठिया सौ मिले जे नीयत रास करे। हिरदे दी धरती ठीक कर ले, गल बन जाए। हिरदे का सिंहासन ठीक कर ले, खुदा प्रगट हो जाएगा। तो बाबे फरीद का हिरदे का सिंहासन ठीक है, उत्थे खुदा प्रगट है। एक सलोक तो भुलेखा लग सकता सी कि वाकई रब किसी भेख दे च मिलता है। तो गुरु अमरदास जी महाराज ने अगों चल के गल खोल दी है, फरीदा काहे पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरेओ, नानक घर ही बैठिया सौ मिले जे नीयत रास करेओ। जे नीयत ठीक नहीं तो पुण्य भी पाप ने। पाप पुण्य दो एक समान, पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है। अंदरों नीयत ठीक नहीं, दान करी जा रहा है। अंदरों नीयत ठीक नहीं, कीर्तन करी जा रहा है, सुनी जा रहा है। अंदरों नीयत ठीक नहीं, पाठ करी जा रहा है। अंदरों नीयत ठीक नहीं, मत्था टेकी जा रहा है। पाप पुण्य दो एक समान, निज गुण पारस तजो गुण। पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऐसे बंदे नूं लोग थोड़ा जिहा सन्मान दे देंगे, बई मत्था टेकदा जी, कीर्तन सुनदा जी, बड़ा पाठ करता है। पर जे नीयत ठीक नहीं तो पाप पुण्य दो एक समान। पाप ते पाप है, पुण्य भी ऐसा पाप है जब नीयत ठीक नहीं, हिरदे चो ना कीता जाए, दिलों ना कीता जाए। तो मैं अर्ज करा, 4 पड़ाव गुरु नानक देव जी महाराज ने दसे। जब नीयत शुद्ध होके मनुख कर्म करता है, दिलों करता है, दिलों जाप करता है, दिलों बाणी पढ़ता है, अंदरों ये चाहत ते उमंग है, हे प्रभु मेरी सुरत तेरे तक पहुंचे, तो फिर कुछ पड़ावां चो लंघदी है और फिर सुरत सहजे सहजे पहुंचती है सचखंड तक। हिंदू ऋषि मुनिया ने कह दिता, प्रथम कर्म कांड, फिर उपासना कांड, फिर ज्ञान कांड। मोहम्मद साहब ने कह दिता, पहले शरीयत, फिर तरीकत, फिर मार्फत, फिर हकीकत। ते सह गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, पहले धर्म खंड, फिर ज्ञान खंड, फिर शर्म खंड, फिर कर्म खंड, फिर सचखंड वसे निरंकार। फिर है सचखंड, जिथे निरंकार ज्योतिमान है, जिथे सुरत जाके इंज लीन हो जाती है जिमें कोई नदी सागर विच लीन हो जाए। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। तो वो लीनता नसीब हो सके, पहले बंदा की करे? तो साहब कहते हैं पहले ये धर्मी बने। धर्म का आखिरी अर्थ है धारण करना, किसी नियम नूं, असूल नूं धारण करना।
जिस दे आसरे ते जमीन खड़ी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ, जिस दे आसरे ते सूरज चंद तारे खड़े ने ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ धर्म। नाम के धारे सगले जन, धर्म के आसरे ते सब खड़े ने। धर्म एक मर्यादा, धर्म एक नियम, धर्म एक असूल, धर्म जो धारण किया होया है सब कुछ ने, जमीन ने, आसमान ने, सूरज चंद तारिया ने धारण किया होया है, इन्हों कहते हैं धर्म। कहते हैं मनुख ने नहीं धारण किया होया, इस वास्ते पशु पंखी भी धर्म दे च ने, सूरज चंद तारे भी धर्म दे च ने, रातां रुतां थितवार सब धर्म दे च ने, बंदा धर्म दे च नहीं। इस वास्ते सारे का सारा जिहड़ा धार्मिक उपदेश है सिर्फ मनुख वास्ते, और किसी वास्ते नहीं, ना पशुओं वास्ते, ना पंखियों वास्ते, ना कीड़े मकोड़ियां वास्ते, ना सूरज चंद तारियां वास्ते, सारे का सारा धार्मिक उपदेश मनुख वास्ते। पता क्यों? कि मनुख स्वतंत्र है रूहे जमीन दे, और ये स्वतंत्रता ही इसकी एक बहुत बड़ी सौगात है, और ये स्वतंत्रता ही किसी वक्त इस वास्ते कहर साबित हो जाती। स्वतंत्रता तो इस वास्ते भी अगे वध सके, पर कई दफा ये अगे वधण की थां ते पिछे मुड़दा। कहते ने एक दिन हजरत अली ने प्रश्न किया सी मुहम्मद साहब से, भी कुछ मैं भी कर सकदा कि सब कुछ खुदा करता है। मैं इस वास्ते अर्ज कर रहा कि गुरु ग्रंथ साहब दी कुछ पंक्तियां तो लोग अर्थ होर दे होर कर लेंदे। जे कईयां नूं कहो ना भी पुरखा तू अमृत पान कर ले, गुरु वाला बन जा तां तेरा मत्था टेकिया ठीक है। कहंदा गुरु जद जपाएगा उदों जपांगे, गुरु जद छकाएगा उदों छकांगे। ते गुरु अजे यही चाहता तू शराब भी पींदा रहे, गुरु अजे यही चाहता है तू पुठे रस्ते चलदा रहे। ते जिहड़ा गुरु इस तरह का चाहता, गुरु किस तरह गुरु होवेगा? नहीं, चुनाव ते तू करना है, चोण ते तू करनी, तू स्वतंत्र, तू अगे भी जा सकता है, पिछे भी जा सकता है, इतना चुनाव तू करना है। और जगत के तमाम रहबरी पुरुषों ने एक है, कृष्ण जी ने साफ अर्जन नूं कह दिता सी, कर्म करना तेरे हाथ च है, फल देना मेरे हाथ च, फल तेरे कोल नहीं पर कर्म तेरे कोल जरूर है। हजरत अली ने पूछ लिया सी मुहम्मद साहब को, भाई सब कुछ खुदा करता है या कुछ मैं भी करदा? उन्होंने समझाने का ढंग बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण के राही सी। खड़ा सी हजरत अली, दामाद सी मुहम्मद साहब का, ते मुहम्मद साहब सुभावक कहते ने, अली तू जमीन तो अपना एक पैर चुक ले। बेचारा एक पैर ते खड़ा हो गया, एक लत चुक ले। ते मुहम्मद साहब कहने लगे हुण तू दूजा पैर भी चुक। ते अली कहने लगे ये ते नहीं होने लगा, मैं जमीन तो एक पैर ते चुक सकता, दोवें नहीं चुक सकता। किड़ा पैर तू जमीन तो चुके है? बायां पैर में चुके है। तो मोहम्मद साहब कहने लगे जे तू दायां पैर चुके तो फिर हुण तैनूं की करना होगा? भाई बायां पैर मैनूं रखना पेगा। भाई पहले तू दायां पैर भी जमीन तो चुक सकदा सी ना, इतनी तैनूं खुल ते सी। हाँ इतनी मैनूं खुल सी, हुण नहीं है खुल। इतनी स्वतंत्रता तेरे कोल है, एक पैर तू जमीन तो चुक सकदा है, दोवें नहीं। इतनी खुल तेरे कोल है, तू कर्म कर सकदा है, चंगा या माड़ा तेन खुल है, पर ओदा जिहड़ा फल है वो तेरे हाथ च नहीं, उतों पतंत्र है। जे तू एक दफा बीज चुके हैं तो तेनों लाजमी भोगना पेगा। तू लख भी यतन कर, तू बाजरा बीज दिता है तो तेनों ख्याल आ गए भुल हो गई है, कणक बीजनी सी, तो तू लख तपस्या कर, लख साधना कर, पैदा तो बाजरा ही होगा। आप बीज आपे ही कर, इत्थे ते जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। तू बीज चुके हैं ते फिर आंखें भुल हो गई है, गलती हो गई है, ये मैं नहीं बीजना सी। ये ठीक है, तू भुल नूं सुधार, पर जिहड़ा बीजे हो ते वड। तो कई दफा बंदा जप भी करदा पिया हुंदा, तप भी करदा पिया हुंदा, दुख आ जांदे ने ते बंदा बेचैन हुंदा भी रब जिहड़ा बड़ा अन्यायकारी है, असीं सब कुछ करदे हां ते दुख है भी पुरखा कणक ते तू अज बीजीए ते जिहड़ा पहले दा बाजरा बीजिया वो कौन वड्डेगा? वो भी ते तू वड्डना, वो किसने वड्डना? आप बीज आपे ही खा, ते जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। तेनू जमीन दे दी है, तेरी मर्जी है तू की बीजना है, ये तेरी मर्जी है। इतनी चोण तू करनी है, इतना चुनाव तू करना है, इतनी स्वतंत्रता परमात्मा ने तेनू दी है। पशुओं की जिंदगी बजी हुई है, वो खाने पीने तक भी बचे हुए हैं,
वो अपना खाना पीना भी तब्दील नहीं कर सकते। लख भुखी मर जाए गऊ मांस नहीं खाएगी, ते लख भुखा मर जाए शेर घास नहीं खाएगा। उन्होंने खाना पीना भी रब की तरफों फिक्स है, कोई चुनाव नहीं कर सकते। पतंत्र ने बजे हुए ने, मनुख चोन कर सकता है की खाना है, की पीना है, की पहनना है, किस तरीके नाल मैं अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है, सारा चोन मनुख की खुल है, पूर्ण रूप से खुल है। और इस खुल करके कई दफा मनुख तो बड़े भारी अनर्थ हो जाते हैं। हुण इनू खुले अगे भी जा सकता है, पिछे भी जा सकता है। ज्यादातर ऐसा होंगे बंदा पिछे ही चलता है, तो फिर दोषी ठहरांदा है भाई जो रब चाहेगा उदों चलांगा अगे। इसका मतलब है जो रब यही चाहता तू पिछे ही जा, सारी गल रब ते ही सुटदा पिया। ते जिहड़ा रब तैनूं पिछे सुटना चाहता है वह रब दयालु किस तरह होगा, और रब कृपालु किस तरह होगा, और रब महान किस तरह होगा। रब ते चाहता है तू मेरे कोल आ, तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे दुखी हर आप ने वारे, आपदा भई भी वो ते तेरी उड़ीक दे च, वो ते तैनूं बुला रहा। अनेकां पासियां तो वो तैनूं आवाज मार रहे भी तू आ, तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे दुखी हर आप ने वारे, आपदा भई बीतीत। तू एक दफा आओ ते सही मेरे कोल, तेरे मैले कपड़े मैं आपे धो देंगा, तेरा मैला जिस्म मैं आपे साफ कर देंगा। तू आओ ते सही, ते आना ही बड़ा औखा हो गया। एक कहंदा हुण पहले मेरे कपड़े साफ हो जान, पहला मैं अपना जिस्म साफ कर लवां, फिर मैं जाना है। फिर जान की लोड़ ही की, तू हुणे ही चल, जिहो जिहां दा है हुणे ही चल पै, जिहो जिहां दा तेरा मन है, जिहो जिहां दे इस वक्त तेरे कर्म ने, हुणे तो निर्णय कर ले इत्थों ही चलना है। जिथे खड़ा बंदा यात्रा तो उत्थों ही शुरू होनी है, और कित्थों यात्रा शुरू होनी है। पर कहंदा नहीं, जदों हुण रब चाहेगा। मैं ऐसा देखिया जिहड़ा शुभ काम है करीबन करीबन बंदा इसनूं मुलतवी करदा है, कल ते सुटदा है, कल ते जब कल ते ही सुटिया तो मनुख की जिंदगी च कल आउंदा कित्थे, कतई नहीं आउंदा। इस वास्ते शुभ कर्मां तो करीबन करीबन मनुख बच जाता है। ते फिर बहाना है जदों रब चाहेगा। हुण ये जिहड़ा भगतां ने कहा है कि मनुख दे हथ विच कुछ भी नहीं, करन करावन आपे आप, मानक के किछ नाहीं हाथ, ये जिहड़ी गल कह दी है। और भगत साफ कहंदे ने, हे प्रभु तेरी मेहर नाल होई है गल, तेरी बख्शिश नाल होई है, तेरी रहमत नाल होई है। गल इत्थे यह है कि एक पैर जिहड़ा जमीन तो चुकना है, इतनी खुल किसने दी है? परमात्मा ने दी है, अपनी तो नहीं ना। इतनी खुल भी उस रब की दी हुई है, इतनी खुल भी परमात्मा की दी हुई है। तो भगतां नूं इस गल की समझ है, वो कहंदे हे परमात्मा अगे जाण दी पिछे जाण दी जिहड़ी खुल है, ये भी आखिर तूं दित्ती है, साडा ते कुछ नहीं, सब कुछ तेरे हाथ च। उन्होंने इत्थे कहा है असीं नेक भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, असीं जहर नूं अमृत भी बना सकते हैं, अमृत नूं जहर भी बना सकते हैं। पर इतनी खुल चूंकि तू दिती है सानू, साडी अपनी नहीं है। तो भगत इत्थे कह देंगे सब कुछ तेरे हाथ च, सब कुछ तेरे वास्ते च। मनुख ने मिठे गन्ने के रस नूं शराब विच बदल दिता, मिठे अंगूरां नूं शराब विच बदल दिता। पर मनुख ने ऐसा भी किया कि कोड़े संखिए नूं कुस्ते विच बदल दिता है। तुसीं वैदां दी दुकान ते हिंदुस्तान विच की देखोगे, संखिए नूं मार के कुस्ता बना लैंदे ने। दिल दिमाग नूं ताजगी देंदा, देसी दवाई है। उंज कच्चा संखिया खाओ तो बंदा मर जाता है, पर जिस ढंग नाल कुस्ता बनाते हैं संखिया अमृत बन जाता है, जहर अमृत बन जाता है। मनुख दे कोल ये जुगती है, ये चाहे तो जहर नूं अमृत बना सकता है, ये चाहे तो अमृत नूं जहर बना सकता है। ये तो बंदे की मर्जी है कि सच में कंघा फेरना है कि कैंची फेरनी, मेरी मर्जी है, मनुख की मर्जी है। इतनी खुल दी है रब ने, इतनी खुल परमात्मा ने दी है। गन्ने के रस का गुड़ बनाना है, चीनी बनानी है या शराब बनानी है, मेरी मर्जी है। ये तो खुल देती है मनुख, परिपूर्ण परमात्मा ने खुल दी हुई है। पर चूंकि खुल उसने दी हुई है, साडी अपनी नहीं, तो भगत इत्थे कह उठते हैं सब कुछ तेरे हाथ च। इतनी खुल भी दी है कि तू ही दी है ना, साडा अपना तो कुछ भी नहीं। इस ढंग नाल उन्हां भगतां ने कहा है जो अपनी सुरत नूं इतना उच्चा लै गए सन, प्रभु तक पहुंच गए सन, बाणी तक पहुंच गए सन, गुरु तक पहुंच गए सन। उन्होंने कह दिता सब कुछ तेरे हाथ च है, क्योंकि जिहड़ी तू खुल दी सी अगे जाण दी पिछे जाण दी, उसका सदका सी अगे चलिया ते तेरे तक पहुंच गया। ये खुल भी तू दी है, इस वास्ते सब तेरी रहमत, सब तेरी बख्शिश। फिर ऐसा भी है कि एक निक्का जिहा बीज बोया बोड़ दा ते इतना वड्डा दरख्त हो गया, एक निक्की जी अंब की गुठलू बोई इतना वड्डा दरख्त हो गया, तो इतने सारे फल लगे। तो भगत कह उठता है हे दाता, मैं तो थोड़ा जी अमृत वेले किधरे जा गया सी, थोड़ी जिहा साधना की सी,
थोड़ा जिहा जाप कीता सी ते इतना वड्डा रस मिलिया, ये तेरी बख्शिश, ये तेरी रहमत। मैं तो कुछ भी नहीं किया, एक निक्का जिहा बीज बोया, इन्ना वड्डा दरख्त हो गया, इतने फुल लग गए ने, इतने फल लग गए ने, इतनी संघनी छां हो गई है। तो हिरदा धनवाद नाल भर जाता है भगत का। वो कहता तेरा शुकराना, मेरे हाथ च कुछ नहीं, तेरी बख्शिश है। मैं तो एक निक्का जिहा बीज बोया सी, कुछ भी नहीं, पर बोया ते सी, एक निक्का बीज बोया ते सी, इन्ना ते कीता सी। ये ठीक है, दरख्त फुल फल बड़ी रहमत बड़ी बख्शिश हो गई, पर इन्ना ते कीता। ऐसे वास्ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने जो धर्मखंड की व्याख्या की थी, मैं थोड़े सामने रखा। साहिब कहते ने राती रुती थिती वार पाउन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखे धर्मशाल। साहिब कहते ने रातां नूं वेखिए, रुत्तां नूं वेखिए, थित्तां नूं वेखिए, ग्रह नक्षत्रां नूं वेखिए, सब मर्यादा दे चल रहे हैं। सारी दुनिया विच ट्रैफिक दे रूल ते बकायदा मौजूद ने, पर सारी दुनिया च किसी न किसी रूप में एक्सीडेंट होंदे ने। कोई ऐसा देश नहीं जिथे एक्सीडेंट ना होंदे, हर देश दे होंदे, पर नियम मौजूद ने, रूल मौजूद ने। ऊपर थोड़ी जी झात मारिए, अरबां खरबां ग्रह नक्षत्र तारे स्याहे, और इतनी तेज गति नाल चल रहे ने, कई आवाज तो भी तिखे। मजाल किधरे टकराओ, मजाल किधरे कोई एक्सीडेंट होवे, कोई तारियां नाल ग्रह नक्षत्रां नाल आपस विच रोज कोई टकराव हो रहा होवे। इत्थों रब्बी शायर भगत लोग अंदाजा लांदे ने, कोई विधान है, कोई नियम है जो काम कर रहे, कोई असूल है जो काम कर रहे हैं। वरना एक हिस्सा जमीन है, 3 हिस्से पानी है, ये पानी कदों दा जमीन नूं खा जांदा। कुछ नियम है, कुछ असूल है, और जे असूल ते नियम है तो नियम नूं बनाने वाला भी कोई है। अपने आप इट्टां तरतीब विच नहीं रखियां जांदियां। जे दीवार बन गई है तो इट्टां नूं फिर किसी ने तरतीब विच रखिया। कभी जिंदगी नूं वेखो, सब कुछ तरतीब दे, एक एक नस, अखां ए दंद ने, मुंह मत्था है, तेनों अखां सिर दे उत्ते हो जाण, नक हत्थां नूं लग जाए, दंद पिछे लग जाण, कन हाथी की तरह हो जाण, तो क्षमा करनी कहना पै गया तो इट्टां दा ढेर इवें किसी ने सुट दिता। पर नहीं, एक एक नस तरतीब दे च, एक एक अंग तरतीब दे च, एक एक वस्तु जिहड़ी तरतीब दे च है, इस तरतीब नूं देण वाला कोई है, इस नियम नूं बनाण वाला कुछ है। साहिब कहंदे तेरी शरीर की धरती किसी नियम के नाल उसरी है। पुत्री देवी विध कर खाटी, किसी विध के मुताबिक, किसी विधान के मुताबिक ये तेरा शरीर का पुतरा जिहड़ा है ये बने। सूरज चंद तारे बने ने, टिके हुए ने। ते जे सब कुछ किसी नियम दे टिके हुए ने और नियम दे चल रहे ने, ते ऐ बंदे तू भी नियम दे चल। सूरज चंद तारे ते नियम दे चलन, दरिया भी नियम दे चलन, सागर भी नियम दे होवे, ग्रह नक्षत्र भी नियम दे होवे, रात ते दिन भी अपने नियम दे चले। ते ऐ बंदे तू बेनियमा होवे, तेरा कोई नियम ना होवे, ना खाण दा, ना पीण दा, ना उठण दा, ना बैठण दा, ना सौण दा, ना जागण दा, सब कुछ बेतरतीब होवे। साहब कहते हैं फिर जिस वक्त बंदा बेतरतीब होता है, उस तो नुकसान बड़ा होता है। एक दरिया नियम की उल्लंघना कर छड़े ते हड़ां की शक्ल अख्तियार कर जाए, बड़ी तबाही आ जाती है, बड़ी बर्बादी आ जाती है। चुल्हे विच बलदी बलदी अग जे किधरे बाहर प्रगट हो जाए ते मकान जल के राख हो जाए, उत्थे असीं कहने अग बेमर्यादा हो गई। चुल्हे च बलदी रहे तो मर्यादा से, बेमर्यादा हो गई, मकान में लग गया। जिंदगी तरतीब दे चले, अपने आप नूं भी सुख मिलता है, दूजियां नूं भी सुख मिलता है। कि जदों बंदा बेमर्यादा होंदा है, खुद भी दुखी होंदा है और भी कईयां नूं दुखी करता है, और भी कईयां नूं परेशान करता है। एक दुखी बंदा कईयां दे दुख का बायस बनता है। घर विच एक रोगी होवे, सारियां नूं परेशान करेगा। क्षमा करनी, किसी शहर विच एक बंदा बेतरतीब होवे, कईयां दी बेतरतीबी का कारण बनेगा, कईयां दी परेशानी का कारण बनेगा, कईयां दे दुख का कारण बनेगा। इस वास्ते साहिब कहते हैं राती रुत्ती थित्ती वार नियम दे विच जीवना। पर नियम की है, असीं किस तरह समझिए? इस वास्ते सतपुरुषां ने गल्लां खोल के दस दित्तियां भी तू नियम दे चलना है। भी नियम की ने? तो चूंकि साडियां हस्तियां 3 ने, शरीर है, मन है और आत्मा है। तो सतगुरां ने कुछ आत्मा के नियम दसे, कुछ मन के नियम दसे, कुछ शरीर के नियम दसे। ये जिहड़ियां रहतां ने, ये शरीर के नियम ने। बाणी दे विचार है, कथा कीर्तन का सुनना है, ये मन के नियम ने, मन की रहत।
वाहिगुरु वाहिगुरु का जिहड़ा जाप है, इस जाप दे विच जिहड़ा ध्यान जोड़ना है आत्मा का नियम है। हस्तियां साडियां तिन है और तिन्हां नूं नियम दे विच रखना पेगा, तिन्हां नूं एक मर्यादा देनी पेगी, तिन्हां नूं एक असूल देना पेगा। छोटे जिहे बच्चे स्कूल विच जांदे ने, यूनीफॉर्म बकायदा पहन लैंदे ने, सानूं कोई इतराज नहीं आउंदा, लेकिन खिमा करनी गुरु दे दर आउंदियां, प्रभु कोल पहुंचदियां, ईश्वर कोल जांदियां, अगर कोई विधि विधान गुरु ने बनाया हर बंदे नूं इतराज हो जांदा है। उत्थे बंदा इतराज करता है, छोटे बच्चे वास्ते कोई इतराज नहीं करता। वो मामूली जिहा स्कूल विच जिथों आम दुनियावी विद्या, वो विद्या जिहदे नाल जिंदगी सिर्फ चलनी है, बदलनी कोई नहीं, उत्थे ते सारे नियम की पालना, ते जिहदे नाल लोक पर लोक सवरना है, उत्थे कोई नियम की पालना, उत्थे कोई मर्यादा की पालना नहीं। उत्थे असूल नूं तूं छिक्के ते टंग देवें। इत्थों कहना पैना है कि तू अपनी सुरत नूं अजे इस मार्ग ते तोरिया ही नहीं। जिस बंदे का खाना पीना उठना बैठना सोना जागना सब कुछ नियम दे हो जाए, शरीरक रहत भी उसने धारण कर ली, मानसिक रहत भी उसने धारण कर ली, आध्यात्मिक रहत भी उसने धारण कर ली, ये बंदा पहले पड़ाव ते पहुंच गया। ये धर्म खंडी है, पहले पड़ाव ते पहुंच गया। हर धर्म दे बकायदा पहला पड़ाव है। मुहम्मद साहब ने सख्ती नाल कह दिता पहले शरा, ते जो शरा विच नहीं आया हकीकत विच नहीं पहुंचेगा। उपनिषदां दे ऋषियों ने कह दिता पहले कर्म कांड, जो कर्म कांड विच नहीं आया ज्ञान कांड तक नहीं पहुंचेगा। गुरु नानक ने भी साफ कह दिता जिहड़ा धर्म खंड विच नहीं आया वो सचखंड विच की खाक आवेगा। पहले धर्म खंड, धर्म का मतलब नियम, कुछ मर्यादा जो गुरुआं ने बनाई है, जो सतगुरां ने बनाई है। ते इतनी गल कबूल करनी पएगी कि साडे नालों सतगुरु ज्यादा जानदा है, साडे नालों ज्यादा उसनूं बोध है। कि जे असीं कह दईए ते ये गल तेरी गुरु सानू प्रवान नहीं, ऐ भी प्रवान नहीं, ऐ भी प्रवान नहीं, ऐ भी प्रवान नहीं, तो इतनी गल स्पष्ट हो गई ऐ गुरु तेरे नालों असीं ज्यादा जानते हैं। तो जे तेरे नालों असीं ज्यादा ही जानते हैं तो झुकण की कोई लोड़ नहीं, मत्था टेकना फिर पखंड हो गया, फिर की पूजा करनी उसकी, फिर की प्रतिष्ठा करनी, फिर की उसके अगों सिर निवाना। जब कबूल कर लिया भी तेरे नालों असीं ज्यादा जानते हैं, सानू ज्यादा पता है, सानू ज्यादा बोध है, इतनी गल कबूल करनी पेगी ऐ गुरु परमात्मा के संबंध विच मैं इतना नहीं जानता जितना तू जानता। जीवन के संबंध में जो तेरी जानकारी है वो मेरी नहीं, इस वास्ते मैं झुकदा, मैं कबूल करता। रहत रहत रह जाए विकारा, जो फिर बंदा गुरु की रहनी रहता है विकारां तो बच जाता है। तो रहनियां तीन तरह दी ने, शरीरक रहत, मानसिक रहत, अध्यात्मिक रहत। शरीरक रहत है जो पंज ककार सानू सतगुरां ने दे दिते, शरीरक रहत। मानसिक रहत है गुरबाणी की विचार कथा कीर्तन सुनना है, मानसिक रहत है। तुर्क तरीक जानिए हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने कछुक पढ़िए ज्ञान। गुरु ग्रंथ साहब का फैसला, कुछ ज्ञान पढ़, कुछ ज्ञान सुन, मन को समझा अपने, ये मानसिक रहत है। वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप ये हुण कोई ज्ञान तो है नहीं, एक अखर का जाप करी जाओ ये कोई ज्ञान तो है नहीं, एक ही है, ये अध्यात्मिक रहत है। एक अखर का जाप करदियां करदियां मन एक हो जाता है, एकाग्रता नसीब हो जाती है। मैनू दिल्ली विच एक सज्जण कहण लगा बई साहित्यक दुनिया विच, इलम की दुनिया विच जिहड़ी पुनरुक्ति है ये दोष है। एक गल नूं जिहड़ा बार बार दोहराना है ये दोष है, साहित्यक दुनिया विच दोष मनिया गया है। शायरी की दुनिया च, कविता की दुनिया च, साहित्य की दुनिया च, इलम की दुनिया च एक गल नूं बार बार रिपीट करना इसनूं दोष मनिया है। इहनूं कहंदे ने पुनरुक्ति दोष, संस्कृत विच कहंदे ने पुनरुक्ति दोष। बई एक गल नूं तूं बार बार दोहरा छड़िया ते पुनरुक्ति हो गई ते दोष हो गए। वो मैनूं कहण लगा ज्ञानी जी गुरु ग्रंथ साहब विच पुनरुक्ति है, एक गल जिहड़ी एक शब्द च आखी है दूजे च भी होई, तीजे च भी होई, चौथे च भी होई, पंजवें च होई, पुनरुक्ति। उन्हें हिम्मत बड़ी की ते मैनूं कहण लगा मैं 15-20 दिन तो तुहानूं सुन रहा सीसगंज दे विच, तुहाडे कोल भी पुनरुक्ति जिहड़ी एक गल अज कर दित्ती कल भी होई परसों भी होई करी जांदे, कोई नवीनता नहीं है, कोई होर गल नहीं, गल एक कोई। तो कहने लगा आज जपजी साहब पढ़ी, फिर कल पढ़ो, फिर परसों पढ़ो, बार बार पढ़ो, गल समझ आ गई। जपजी साहब का टीका पढ़ लिया, समझ आ गई, एक पाठ की समझ पै गई, विचार की समझ पै गई, बार बार पढ़न का की मतलब है? ये तो पुनरुक्ति दोष है। एक गल नूं बार बार दोहराई जाना है तो दोष है। मैनूं कहने लगा क्या तुसी शायराना मिजाज रखते हो? मैं कहा पुरखा हंकार की गल तो नहीं, मैं शायर भी हाँ, खुद शायरी करदा, साहित्य की थोड़ी बहुत सूझ समझ भी है। पुनरुक्ति दोष है ऐसा मेरा हृदय नहीं मानता।
कहने लगे फिर थानू साहित्य की समझ ही नहीं है, कविता की समझ ही नहीं है, इलम की समझ ही नहीं है। इलम की दुनिया विच, साहित्य की दुनिया विच पुनरुक्ति दोष है, एक गल बार बार दोहरानी दोष है। मैं उन्होंने कहा करते पुरख ने, परिपूर्ण परमात्मा ने अपना सारा जिहड़ा ब्रह्मंड खड़ा किया पुनरुक्ति ते खड़ा किया। मैं कहा देखो एक श्वास लिया है तो हुण फिर लवांगे, ये तो पुनरुक्ति है, रेपिटेशन है और की है। एक दफा लिया श्वास अंदर किया, फिर बाहर कढ़िया, फिर अंदर किया, फिर बाहर, सारा दिन यही करते रहना। एक दफा अंदर लिया तो ठीक है लै गए, फिर दोबारा की लै जाने की लोड़ है। कि जो दोबारा ना लेके गए तो जिंदगी कितने, फिर गल खत्म। जीवन ते पुनरुक्ति ते खड़ा है। दिल बार बार पिया धड़कता है, सवेरे पानी पीता से हुण शाम को पीने की लोड़ है, दोपहर को रोटी खाती से हुण रात को खाने की लोड़ है, बार बार खाई जाते, बार बार खाई जाते। पुनरुक्ति है, भोजन विच पुनरुक्ति है, श्वास विच पुनरुक्ति है, पानी पीण विच पुनरुक्ति है। ते मैं कहा पुरखा तू घर विच जाना है, कभी बगौर मुताला कीता है, परिवार के संबंध पुनरुक्ति ते खड़े ने। जिस ढंग दे बोल तू अज बोले परिवार विच, ये ते कई दफा तू बोल चुके हैं, रोज बोलदा है, उसे बोलने दे उत्ते तेरे संबंध खड़े ने। बोलना ही छड़ दे, कोई नवी गल करदा है तू बच्चियां नाल, पत्नी नाल कोई नवी गल करदा, पुरानी सैकड़े दफा कर चुके हैं। एक वचन अज की बनया, अज तू बहुत अच्छा बनाया, अज तू बहुत अच्छी लगदी है, इस तरह दी गल्लां तू हजारां दफा कर चुके हैं, कोई अज ये तो पुनरुक्ति है। मैनू कहने लगे इस ढंग नाल भी तुसीं सोचदे हो, ते मैं कहा जगत नूं निरा तो मूर्ख ही समझ लिया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने एक गल नूं बार बार जिहड़ा दोहराना है इहदे ते बड़ा जोर दिता। जाप का मतलब एक गल नूं बार बार दोहराना है, उतने चिर तक दोहराई जाना है जितने चिर तक उसका रूप तू ना हो जाए। पुनरुक्ति दी सारी गल करिए, बार बार श्वास ले रहे हैं, बार बार नब्ज चल रही है, बार बार दिल धड़क रहे हैं, बार बार रोटी खा रहे हैं, बार बार पानी पी रहे हैं, बार बार वही गल्लां परिवार दे नाल बोल रहे हैं ताकि फिर संबंध जो है जुड़े रहें। बार बार जपजी साहब इस वास्ते पढ़नी है ताकि जपजी साहब का रूप हो जाए। बार बार सुखमनी साहब इस वास्ते पढ़नी है सुखमनी साहब का रूप हो जाइए। बार बार वाहिगुरु वाहिगुरु इस वास्ते ही रटन करना है ताकि वाहिगुरु का रूप हो जाइए। संसार ते सारा पुनरुक्ति ते खड़ा है। अज सवेरे सूरज चढ़े है, दिन होया, कल फिर दिन होगा। अज रात आई है, कल फिर आएगी, ये पुनरुक्ति है। एक दफा रात आई है तो बार बार आने की की लोड़ है, एक दफा दिन होया है तो बार बार फिर दिन होने की की लोड़ है। तो पुनरुक्ति दे खड़े, सब कुछ पुनरुक्ति ते खड़ा। सागर तो बदल उठते हैं, बरखा होती है तो बरखा होकर पानी फिर सागर की तरफ, पुनरुक्ति है। कभी बगौर मुताला करिए, मुड़ मुड़ के कम हो रहे, बार बार हो रहे। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक शब्द जिहड़ी गल करते हैं वाकई दूजे च भी हुई है, तीजे च भी हुई है, चौथे च भी हुई है, पंजवें च हुई है। मूल गल इतनी है भी तू जाप करना है, मूल गल इतनी है तू नाम जपना है, मूल गल इतनी है कि तू शुभ कर्म करदे आया अपनी नीयत भी शुभ रखनी है। मूल गल इतनी है, बार बार आखी जाने, बार बार आखने का इतना मतलब है कि तू बार बार दोहरावे, और बार बार दोहरान का इस वास्ते मतलब है कि तू उस गल का रूप हो जाए, तू शब्द का रूप हो जाए, तू जाप का रूप हो जाए। तू परमात्मा का नाम बार बार इस वास्ते रखना है कि परमात्मा का रूप हो जाए, परमात्मा की होंद हो जाए, परमात्मा की तेरी अवस्था बन जाए, तां जाके गल बनेगी। जिंदगी सारी पुनरुक्ति ते खड़ी है, संसार सारा पुनरुक्ति ते खड़ा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जिहड़ा बंदा जाप आरंभ कर देवे ते सरीरक रहत भी उसने रखी होवे, मानसिक रहत भी उसने रखी हुई। मानसिक रहते कि कुछ विचारदा भी होवे, मन समझावनकार ने कछुक पढ़िए ज्ञान। इस वास्ते प्राचीन समय चो गुरु घर दे विच इतिहासक वारता और कीर्तन इकट्ठा चले आ रहे। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने ढागदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जन्म दिता भी इतिहास रात ਨੂੰ सुनाया करन, ताकि धर्म का, ऋषि मुनिया का, गुरु जैना का, भगतां का, शहीदां के इतिहास का भी पता चले, उस तो कुछ प्रेरणा मिले। शब्द की विचार भी होंदी रहे। भाई गुरदास जी ने प्रथा चलाई, कीर्तन होंदा रहा। गुरु नानक देव जी महाराज तो प्रथा चली मन को समझाना, मन समझावन कार ने कछुक पढ़िए ज्ञान। पर किसे किसे थां ते मन विचार तो हीणा हो जाता है तो बंदा कुछ शख्सी रहत तो प्रेरणा लवे, कुछ केसां तो प्रेरणा लवे, कड़े तो प्रेरणा लवे, कंगे तो प्रेरणा लवे। ये मोटे रूप ने दिखाई देंदे रहे, इन्हां तो प्रेरणा लवे। तू किसी का सिख है, किसी की दिती हुई रहत तेरे कोल है, ते जब रहत तेरे कोल है तो फिर तू गलत कदम ना चुक, गलत पासे ना जा। शरीर नूं रोक इन्हां रहतां दे नाल, मन नूं रोक शुभ विचार दे नाल।
ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰਕ ਰਹਿਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿਤ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਹਿਤ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਤੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵਿਕਾਰਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮਖੰਡੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਸੋਣਾ ਜਾਗਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਰੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ। ਜਾਪ ਉਸਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਬੇਸੰਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮਖੰਡ ਦੇ ਚ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਹੈ ਬੇਸੰਜਮਾ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸ ਹੈ, ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੰਡ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜ਼ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕੁਛ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਰਹਿਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿਤ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਹਿਤ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮਖੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨਾ ਇਸਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। परमात्मा के पंथ के संबंध में गुरु को बहुत समझ है, बहुत समझ है। इतना तो उसने मन लिया है, इतना उसने मन लिया है। इस गल का सबूत किसने? गुरु की सारी गल मन ली, हर गल नूं मन लिया, खिड़े मत्थे कबूल कर लिया। तो यह बंदा धर्मखंडी है। ते हुण जाप जारी है, इसने अगले पड़ाव पहुंचना है और सहजे सहजे पहुंचना है सचखंड तक। वजाहत मैं कल जिवें गुरु बाबे ने बख्शिश की थोड़े सामने रख देंगा। अज इत्थे समाप्ति। हार्दिक तौर पर थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। तुसीं टिक के गुरमत दीआं गल्लां नूं सरवण कीता। मेरे पातशाह होर रहमत करन, होर मेहर भरिया हथ तुहाडे सिर दे उत्ते रखन, तुहानूं सुणन दी दात देण, तुहानूं मनण दी दात देण। जिन्हें सुन के मन्निया हो तिन बलहारे जाओ। जिसने सुन के मन लिया, गुरु नानक देव जी कहते मैं सदके जाना, उसको मैं कुर्बान जाना। ऐसी हालत बने कि गुरु नानक साथों सदके जान और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साथों बलहारने जान। भुलना चुका ले खिमा दी याचना। वाहिगुरू जी।